अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। अभी आपने देखा ये मौलवी साहब के जनाजे में चलने की जगह नहीं, हजारों लोग कोरोना में। जबकि करण थापर साहब फरमाते हैं कि शाही स्नान कुंभ मेले में उसकी वजह से भारत में कोरोना की हालत खराब हो गई। ये नहीं, ये तो कुछ नहीं। चार मीनार की तरफ चले जाएं, मुसलमान एरियाज में चलने की जगह नहीं। मुंबई चले जाएं, नागपाड़ा चले जाएं, नल बाजार, भिंडी बाजार, क्रॉफोर्ड मार्केट, मोहम्मद अली रोड, आपको चलने की जगह नहीं मिलेगी ये आखिरी रमजान के दिनों में। चांदनी चौक चले जाएं दिल्ली, ये मानने को तैयार नहीं। कुंभ मेले वालों को एक ऑर्डर गया, खत्म। एक आदमी आपको नजर नहीं आएगा उत्तराखंड में। अगले दिन मेला लपेट के रख दिया इन्होंने, जो कि 12 साल में एक बार होता है, जबकि रमजान हर साल आती है। लेकिन ये सुधरने को तैयार नहीं है। पुलिस एसओपीस पे इनके ऊपर अमल नहीं करवा पा रही। ये मुसलमान बंदे को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस गई, अपनी जान बचा के भागना मुश्किल हो गया। फिर आप कहते हो कि हिंदू मुस्लिम। असल फसाद ये लोग कर रहे हैं। ये जो आप शक्लें देख रहे हैं ना, ये जितनी, ये इसमें आपको एपोलोजेटिक लिबरांडो हिंदू मिलेंगे, मुस्लिम मिलेंगे, इनके जर्नलिस्ट मिलेंगे, पॉलिटिशियंस मिलेंगे, सेलिब्रिटीज मिलेंगे। आज विशाल दादलानी साहब ने एक ट्वीट की है कि बीजेपी के ट्रोल्स मुझे गालियां दे रहे हैं, लेकिन ये नाकाम लोग हैं और ये है और वो है। चमचागिरी में आज भी ये मुगल दौर में रह रहे हैं, जजिया दे के रह रहे हैं, मुसलमानों की चमचागिरी करके ही रह रहे हैं। भारत के पास एक ही हल है। पहले आप जरा देख ले ये साहब क्या कह रहे हैं। Since we have told ourselves that we don't have a specific identity, we don't seem to have a problem with illegal immigration also. Because then we'll immediately cite an ancient Indian tradition. Atithi Devo Bhava, they have to come. How can we behave like this as far as these people are concerned? We have welcomed the Jews, we have welcomed the Afghans, we have welcomed the Tibetans. Why can't we welcome these people? Have Tibetans killed you? In all the years that Tibetans have lived in this country since the invasion of their country, have you heard one riot between Tibetans and Indians? At least in the name of religion. Jews have been living in this country for millennia. They too are a monotheistic faith. Have you heard of one problem between Jews and non-Jews? Parsis have lived in this country. They perhaps constitute the best definition of a minority because today their population is 60,000 and even going down. You've never had a problem as far as they are concerned. So how is it that a position with respect to one particular group is immediately interpreted as an anti-minority position when I don't seem to have a problem with any other minority? They are minorities in the true sense of the word. What does this tell you? And I have to impress upon you this important aspect. 10 years ago or 15 years ago, those places where you would have comfortably been in a position to celebrate your festivals or enjoy your traditions and customs, today you need permission in those places to celebrate your own festivals. What has happened in Calcutta, what has happened in West Bengal, and the need for judicial intervention for you to be able to carry out your own processions and to celebrate your own festival is a wake-up call for the rest of the country. If you do not wake up right now, in your own lifetime, you will find 1,000 warmongers and barbarians standing outside your home and asking you to give up or give up your faith, give up your life or give up your faith. And if I don't know if how many people are even following the news in Kerala. Every day, almost 15 girls are being shipped to Syria. Almost 15 girls on a daily basis.
please wake up to these things for the simple reason that if you think India is only a place where you earn a degree and run away to the West, perhaps the future will, the next generation will not even have an India to do so. You will not be in a position to do that either. Importantly, you can leave this country and run from one country to another, but can you abandon your identity altogether? That will continue to hound you. And someone who has a problem with your fundamental identity, it doesn't make a difference to him whether you're in India or any other place. As long as you don't give up that particular identity, he's going to come after you. Therefore, an Indic Renaissance is not an academic discussion. It is not a discussion meant for, let's say, wine tasting rooms, or it's not a discussion meant for just books. It has a very real relevance to the existential issues that face this country today. So my request would be that we need to choose for ourselves how do we wish to contribute to this renaissance in one way or the other. You can either be the financiers of this particular movement, or you can be the influencers of this particular movement. You can be the thought leaders of this particular movement, or you can be the grassroots activist. But you must take part in this particular movement in one way or the other, because if you don't do so, your children will not live in the same India that you lived. And you certainly don't live in the same India that your parents lived. So as far as I'm concerned, action is most important. Choose for yourselves one area where you think you're in a better position to contribute, and focus on contributing it in one way or the other. Me, as part of my work, and my team have chosen the legal and the constitutional means to contribute in whichever small way that we can, to push forth our point of view. To push forth the point of view that the space for an Indic identity is being encroached increasingly, and there must be a constitutional resistance to it, and that's what we are doing. Please choose for yourself a certain forum, a certain field of activity, a certain area of expertise, and dig deep into it, and make sure that you contribute to it in one way or the other. One of my most favorite statements is, if you can't be a Rana Pratap, at least be a Bhamasha. If you can't fight in the field of battle, at least help those people who are taking the fire on a regular basis. There is strength in numbers, and therefore numbers matter, and therefore demographics matter. We are willing to treat everybody as our equal, and for us it doesn't make a difference who comes from what faith, but it seems to matter to the other side, unfortunately so. So wake up to this reality and find an area where you can contribute to the Indic Renaissance in one way or the other. Questions, please. शिकवा तो बनता है कि इस देश में ज्यूस आए, पारसी आए, इन्होंने कोई कत्लेआम नहीं किया, इन्होंने यहाँ पे आम आदमी को तकलीफ नहीं दी। इस देश की डेवलपमेंट में, इस देश की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट किया। लेकिन ये जो अब्राहमिक रिलीजन आए ना, इन्होंने जो बेड़ा गर्क किया, और आज भी जो कर रहे हैं, फिर जो लोकल वैल्यूज को डिग्रेड कर रहे हैं, जो खुल के कहते हैं कि हम इस देश को मुसलमान बनाएंगे, तो ये बड़ा मसला है। यहां पे आपको ये जरूर देखना है कि कौन क्या किरदार अदा कर रहा है। एसओपीज की आप पाबंदी नहीं करें। कोविड की बर्बादी का जिम्मेदार बीजेपी है, वाह जी वाह। एहतियात आपने नहीं करनी, ब्लैक मार्केटिंग में आप आगे आगे, जिम्मेदार मोदी। गलतियां आप करें। शमशान घाट की पिक्चर्स बिक रही हैं, कब्रिस्तान में खामोशी से काम हो रहे हैं, वो नहीं बता रहे ये लोग, और इनके जर्नलिस्ट बदबूदार। देखें, मसला ये है, बड़ा पेचीदा सा मसला है भारत का। आप अजीत डोवल साहब की ये बात देखें जरा। सोचने और समझने की आवश्यकता है। एक कारण
मैं ज्यादा चीजों में नहीं जाना चाहता, इतना समय भी नहीं होगा, कि भारत विदेशों से इतना नहीं हारा। अंग्रेजों ने भारत के खिलाफ कोई लड़ाई ऐसी नहीं जीती जिसमें कि अंग्रेजों की फौज में भारतीय सिपाही नहीं थे। चाहे वह पहले बंगाल नेटिव आर्मी थी, 1857 के अंदर में सिखों और गुरखास ने उनका साथ दिया, जब सिखों से लड़ाई हो रही थी तो बाकी लोगों ने उनका साथ दिया, हमेशा नेटिव आर्मी उनके साथ थी। जब जब आक्रमण वेस्ट से हुआ, चाहे वो पार्थियंस थे, चाहे हून थे, चाहे मंगोल आए, बाद में मुगल आए, तो लश्कर कहां बने? वो तो थोड़े से लोग आए थे। लश्कर बने काबुल में, जिस वक्त तो इस्लामाइज भी नहीं हुआ था, लाहौर में, सरहंद में। हिंदुस्तानियों को हराया है तो हमेशा हिंदुस्तान के लोगों ने साथ नहीं दिया देश का, और दर्द है तो केवल इसी बात का। भारत के इतिहास में अगर दर्द केवल इस बात का नहीं है कि विदेशियों ने हमारे साथ क्या किया, उनका तो हम मुकाबला कर लेते, दुख इस बात का था कि हमारे सभी लोगों ने साथ नहीं निभाया और साथ नहीं दिया। और इसकी फीलिंग आज भी मुझे इस देश में होती है। और भारत को आंतरिक या बाह्य शक्तियों से जो सबसे बड़ा खतरा है, वो खतरा इस बात का है कि हमारे अपने लोग ही कहीं राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की अस्मिता, राष्ट्र के गौरव का सौदा न कर बैठे, अपने आज के सुख के लिए अपने भविष्य को अंधकारमय न कर दें। और इसके लिए जो जागरूकता चाहिए, इसके लिए जो ताकत पैदा करनी है, वो ताकत केवल समाज के अंदर भी पैदा की जा सकती है। उसको केवल आप लोग कर सकते हैं। वो केवल आज की युवा। इनको भारत में सेक्युलरिज्म चाहिए, लेकिन भारत के जिन जिन इलाकों में मुस्लिम मेजोरिटी है वहां पे इनको प्योर शरिया चाहिए। हिंदू जल से जुलूस नहीं निकले, हिंदू पूजा पाठ ना हो वहां पे। कोर्ट के फैसले देख लेना आप। मतलब ये कहते हैं कि हमारा जहां पे मेजोरिटी है वहां पे हिंदू अपनी कोई एक्टिविटी ना करें। हाँ, हम जहां माइनॉरिटी है वहां पे लाउड स्पीकर पे 5 टाइम आपको अजानें सुनाएंगे, आपके खिलाफ दुआएं मांगेंगे, और फिर इनकी अपीजमेंट कुछ पॉलिटिशियंस कर रहे हैं ना भाई। ये ममता जी जो कर रही है ये क्या है? अभी खबर आई है कि 29 MLA, जिसमें से 21 कंफर्म हो रहे हैं, रोहिंग्या इलीगल माइग्रेंट्स इलेक्ट हुए हैं। यार ये तो भारत को भी बनाना रिपब्लिक बनाते जा रहे हैं, तो फिर कैसे मसला हल होगा? सेक्युलरिज्म को या तो करेक्ट करो, और उसमें सबसे बड़ा देखें, मैं हल जो बात करते हैं ना, हल सिंपल सा है। कम्युनलिज्म के लॉ को रीराइट करना होगा। जो कम्युनल मुस्लिम लीडर्स हैं उनको टाइट करना होगा। नीचे वाले अपने लीडर्स की सुनते हैं। कम्युनल मुस्लिम लीडर को पकड़ के टाइट करेंगे तो नीचे सारे मामला ठीक हो जाएंगे। ये बहुत जरूरी है। और हिंदुओं की तरबियत करनी होगी। कंगना क्यों इतनी तल्ख हो गई हैं, क्यों इतनी बिटर हो गई हैं? इसलिए कि बर्दाश्त खत्म होती जा रही है। और उसके अगेंस्ट में कंगना को कोई मुस्लिम कुछ भी टारगेट नहीं कर रहा, हिंदू ही कर रहे हैं। ये दिलीप ताहिल जी हैं। हिंदू तल्ख हो रहा है क्योंकि वो तंग आ गया है, और ये अभी तो स्मॉल फैक्शन है। जिस दिन ये बहुत ज्यादा बढ़ गया ना, उस दिन फिर इस देश में बड़े मसले पैदा हो जाएंगे। जरूरी है कि यहाँ के सेक्युलरिज्म को करेक्ट किया जाए, सबको इक्वल बनाए,
अपीजमेंट की पॉलिसी खत्म करें। भारत में जो पोटेंशियल है उसको रोकने के लिए पाकिस्तान, चाइना विद इंटरनेशनल नेक्सस ऑफ लेफ्ट मिल के भारत में अनरेस्ट पैदा करते हैं धर्म के नाम पे। इसको रोकने के लिए मुसलमानों के लिए लॉज भी बनाने होंगे और उनकी तरबियत भी करनी होगी। एंड अगेन, जो नफरत का प्रचार करने वाले जो मदरसे हैं ना, उन मदरसों को बंद करना होगा। मस्जिद को आपने कन्फाइन करना होगा सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए, नमाज के लिए, दैट्स इट। तबलीग पे पाबंदी होनी चाहिए। तबलीग क्यों होगी, चाहे वो क्रिश्चियनिटी की हो या इस्लाम की हो। जिसने बनना है अपनी मर्जी से हिंदू बने, मुसलमान बने, क्रिश्चियन बने। इंसेंटिव क्यों दिए जाते हैं? लालच, धमकी, झूठ, जन्नत के ख्वाब, ये सब करेक्ट करना होगा। भारत को अपना सिलेबस भी चेंज करना होगा। अपनी झूठी मुसलमानों की जो हिस्ट्री है, इन्वेडर्स भारतीय नहीं थे, उनकी हिस्ट्री पढ़ानी बंद करनी होगी। ट्रू भारत के जो लीडर्स थे, इंडिजिनियस जो लीडर थे, उनको पढ़ाएं आप। और हिंदुओं को इसमें बड़ा किरदार अदा करना है, पीसफुली सही, लेकिन जिस तरह कंगना कोई वायलेंस तो नहीं कर रही ना, वो वायलेंस को कंडेम करती है। इसी तरह आपको आगे बढ़ के अपने देश, अपने धर्म, अपनी ज़मीन की हिफाजत करनी होगी। वरना डिज़ाइनिंग जो इंटरनेशनल है वो बड़ी भयानक है भारत के लिए। वर्ल्ड गवर्नमेंट्स जो है ना, वो आपके साथ हैं, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, जापान हो, अरब्स हो। लेकिन इनके अंदर एक जो कीड़ा है ना लेफ्ट का, वो भारत के खिलाफ चलता है। वो भारत को अपने लिए खतरा महसूस करता है। तो फिर भारत उनके लिए खतरा बने और अपने मुल्क में करेक्शन करनी बहुत ज़रूरी है। मेरी यही विनती है, मैं किसी को भड़का नहीं रहा, लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आगे बढ़ें, चीज़ों को करेक्ट करें, अपनी सरकार को मजबूत करें और सरकार भी आगे अब अपने लेजिस्लेशन को करेक्ट करे। जो पेस रुक गया था कोरोना की वजह से, ज़रा ये कोरोना के मामला अब बेहतर हो रहे हैं, ठीक है, ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन ऑफ कोर्स अभी भी इस क्राइसिस में हैं, लेकिन अब निकलते जा रहे हैं। तो वंस ज़रा मामला ठंडे हो जाएं तो बेहतर है कि जो लेजिस्लेशन और करेक्शन का जो पीरियड है उसको आगे बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों, थैंक यू फॉर सपोर्ट। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम। मरहबा या मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मरहबा या मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए हबीब खुदा अहमद मुस्तफा, ए हबीब खुदा अहमद मुस्तफा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मरहबा या मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मरहबा या मुस्तफा सल्लल्लाहु